Hello and welcome to Basic Radicals Part 4 with a different approach। जो 4 वीडियोस एक के बाद एक इस श्रृंखला में आए हैं वो बेसिक रेडिकल्स की अलग स्कीम्स के अनुसार हैं, जिसके बारे में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल उस अनुसार नहीं होते हैं। लेकिन इस अप्रोच में भी एक अलग आईसाइट है, एक अलग मुद्दा है जिससे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो का हमारा एजेंडा है कि स्कीम ऑफ एनालिसिस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ग्रुप रेडिकल्स। तो यदि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिफ्थ ग्रुप रेडिकल से चालू करें तो एक नज़र हम दौड़ाते हैं कि इसमें कौन कौन से रेडिकल्स हैं। तो 5वां ग्रुप है, रेडिकल्स हैं फेरस आयंस, फेरिक आयंस, मैग्नीशियम 2+, मैंगनीज 2+, बिस्मथ 3+, एंटीमनी 2, 3 and 5 states. As far as the group reagent is concerned, we are taking ammonia, that is the concentrated ammonia, aqueous ammonia, as a group reagent, and the compound solubility is hydroxides that are produced are not soluble in water, alkalis in ammonia. So remember that the hydroxides are not soluble in ammonia, that is, they are not in position to form an amine complex, and there is no solubility in excess ammonia. अगर मेरे पास एक सीरीज ऑफ आयंस हैं, फेरस आयन, फेरिक आयन और मैंगनीज, मैग्नीशियम, बिस्मथ, एंटीमनी के दोनों स्टेट्स, तो फेरस आयन और फेरिक आयन का आइडेंटिफिकेशन उनके अलग सॉल्यूशन से संभव है। यदि मैं फेरस आयन की बात करूं तो मैं इसमें फेरिक आयन दूंगा K3FeCN6, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो फेरिसाइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो रहेगा टर्नबुल्स ब्लू। और यदि मैं फेरिक आयंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए इंटरेस्टेड हूं तो मुझे मिलाना होगा फेरोसाइनाइड। सो K4FeCN6 अगर मैं मिलाऊंगा तो यहां बनेगा पर्शियन ब्लू। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री दे आर सेम काइंड ऑफ स्पीशीज एंड देयरफॉर we will need to discuss them in separate classes, but yes, for identification of ferrous we are adding a ferric complex, and for identification of a ferric ion we are adding a ferro complex that gives ultimately the same dark blue color. So that's the same thing about this group of radicals. Now let's again begin with the scheme that we have in our hand. So we have the kind of species like ferrous and the same thing. Now what we do is we are going to add a nitric acid solution with 3% of peroxide. Now, if we are doing it, what is the likely effect? Can you tell me what is the likely effect? Because they are still, all of them are in solution state. What nitric acid and peroxide is going to do? What kind of thing that we are likely to see? And what do we see is ferric, manganese, magnesium and bismuth, they still remain in the solution, while antimony goes in the other form. However, if you further go with the excess of ammonia, concentrated ammonia, they can be converted into their corresponding hydroxides. Magnesium, of course, will first go to hydroxide and will go to oxide, MnO2, magnesium hydroxide, and bismuth oxide, nitrate. And if we add the other thing, you find that only antimony goes as a white precipitate with nitric acid and peroxide as HSB, antimonic acid. तो यहाँ हम अगर इस जगह पर हम नाइट्रिक एसिड मिला रहे हैं और इस नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा सा मिला रहा है, तो यहाँ मिलाते समय हमको फेरिक, मैंगनीज, मैग्नीशियम और बिस्मथ में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एंटीमोनिक एसिड बनने से यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट हो रहे हैं, तो इसलिए ये जो एंटीमनी का आइडेंटिफिकेशन इस पॉइंट पर खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम और बिस्मथ है, तो यदि मैं इनमें अमोनिया सॉल्यूशन मिलाऊं, एक्वस अमोनिया, कॉन्सेंट्रेट अमोनिया, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अगर फेरस यहाँ था तो फेरिक में कन्वर्ट हो चुका है। मैंगनीज के लिए MnOH होल ट्वाइस के प्रेसिपिटेट मिलेंगे जो MnO2 में बदल जाएंगे। मैग्नीशियम will remain as a magnesia, MgOH whole twice, and bismuth hydroxide will go to BiONO3 type of species, which is because of the non-metallic behavior of bismuth. Now further, if we go for the further identification of these species, what we have to do is, for the antimonic acid, add HCl, that is obviously going to convert into an SbCl6 minus
And with this, if you add a pinch of zinc, metallic zinc would precipitate metallic antimony. So that's the thing. Now we are left with this species, FeOH thrice and all that. What we have to do is we have to add ammonium chloride solution. Now ammonium chloride solution is actually a weak acid, and that would correspond for the conversion of magnesium hydroxide to magnesium ions. That means magnesium hydroxide is immediately destructed by a weak acid like ammonium chloride. And further, if we add sodium hydrogen phosphate or disodium hydrogen phosphate to it, it is the white precipitate, Kurdi white precipitate, magnesium ammonium phosphates are formed, that we know very well. So magnesium is gone. Now we are left with the three things that are unaffected by ammonium chloride, और वो जो तीनों चीज जो प्रभावित नहीं हुई है वो है आयरन का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और बिस्मथ का ऑक्सीनाइट्रेट. ये तीनों चीजें जो हैं वो प्रभावित नहीं हुई हैं. तो अब हम इनके साथ अगर चर्चा करें तो अब आगे हमारे लिए कोई भी स्थिति नहीं बनती है. Let's go for this thing. Now if we go for this particular species, what next we are supposed to do is we need to add a nitric acid solution which is sufficiently acidic to destroy the oxidohydroxide behavior of these species. So with concentrated nitric acid of about 3 molar, we are observing that MnO2.NH2 as a brown precipitate नहीं घुलेंगे, प्रेसिपिटेटेड रहेंगे, जबकि आयरन हाइड्रोक्साइड और बाकी चीजों में परिवर्तन आएगा. उसके बारे में हम बाद में देखते हैं. नाइट्रिक एसिड और पेरोक्साइड फर्दर मिलाने से MnO2 मैग्नीज 2 प्लस आयन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा. और मैंगनीज को हमने जो पहले भी टेस्ट देखी है कि लेड डाइऑक्साइड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो MnO4 के हमको पर्पल कलर के प्रेसिपिटेट या कलर देखने को मिलता है. तो एक बात तो मैंगनीज की हो गई. दूसरी तरफ हमने देखा कि आयरन और बिस्मथ, क्योंकि मैग्नीशियम को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के द्वारा. मेरे स्पीशीज में है आयरन और बिस्मथ. आयरन को मैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड की टेस्ट से आइडेंटिफाई कर चुका हूं. द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट इज टू आइडेंटिफाई बिस्मथ. तो बिस्मथ के आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो बहुत सारा पानी मिला दो तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड के मुझे टर्बिडिटी दिखाई जाती है, या सोडियम स्टेनाइट SnOH6 के अगर हम सॉल्यूशन मिलाते हैं तो बिस्मथ के मेटालिक बिस्मथ के ब्लैक प्रेसिपिटेट दिखाई देते हैं. तो ये एक तरीका होगा इस ग्रुप के रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने का. केमिस्ट्री वही है, तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है. आप चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो अवश्य ही इसके बारे में आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती जाएगी. अब हमारा अगला काम है 6 ग्रुप के रेडिकल्स की चर्चा करना. इस ग्रुप के रेडिकल्स कौन से हैं हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभी फिर से देखते हैं. इस ग्रुप के रेडिकल्स ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ अलग अलग ग्रुप्स में थे. कोबाल्ट, निकल, कैडमियम, कॉपर और मरकरी, ये सभी बायोवेलेंट आयंस हैं. अगर हमको याद है तो हमारा जो चौथा ग्रुप था उसमें जिंक, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट थे. यहाँ कोबाल्ट, निकल, कैडमियम, कॉपर और मरकरी हैं. आप बता सकते हो इनमें क्या कॉमन बात है? कोई एनी आइडिया, एनी गैस? सोचो जरा. अगर आप सोचेंगे आप तो पाएंगे कि ये जो स्पीशीज हैं ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंड देयर अमीन कॉम्प्लेक्सेस आर सॉल्युबल. सो हाइड्रोक्साइड्स आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, caustic soda solution, but they are dissolved in the ammonia axis. तो अमोनिया में ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं काफी सारे रेडिकल्स, तो वो सेपरेशन का एक अच्छा तरीका बन जाता है. खैर, अब मैं कॉपर, मरकरी, कोबाल्ट और निकल के यदि सॉल्यूशन की बात करूं तो मुद्दा ये है कि यदि मैं इसमें एक्वस अमोनिया मिला रहा हूं तो अमीन का, कॉपर का अमीन कॉम्प्लेक्स जो ब्लू कलर का है, मरकरी का अमीन कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट का अमीन कॉम्प्लेक्स और निकल का अमीन कॉम्प्लेक्स बन रहा है. लेकिन ये सभी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो सॉल्यूशन स्टेट के अंदर हैं. तो अब आगे हम स्ट्रेटेजी ये है कि विल डिस्ट्रॉय द कॉम्प्लेक्स बाय एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट. सो ऑल ऑफ देम वुड कम बैक अगेन इनटू देयर मेटालिक फॉर्म्स, कॉपर आयंस, मरकरी आयंस, कोबाल्ट आयंस एंड निकल आयंस. In this procedure, now I am going to add sodium thiosulfate Na2S2O3 that would provide a sufficient amount of
species to convert them into metallic black precipitate. So copper as a cuprous sulfide Cu2S and mercury as a mercuric sulfide HgSC precipitate along with the colloidal sulfur that is whitish in nature. So Cu2S and HgS black precipitates हमको मिलेंगे यदि हमने Na2S2O3 सोडियम थाइसल्फेट के साथ इसको ट्रीट किया है। लेकिन यदि जो प्रेसिपिटेटेड पार्ट नहीं है, जो सल्फाइड के फॉर्म में नहीं बनेगा, वो रहेगा कोबाल्ट और निकल। अभी मैं चर्चा करना चाहता हूं कि ये जो हमारे साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट्स हैं उनका हम क्या करें। ये ब्लैक प्रेसिपिटेट्स हमको मिले कॉपर के और मरकरी के, पहले भी हम देख चुके हैं कि इनको हम नाइट्रिक एसिड में घोलेंगे तो सॉल्यूशन स्टेट में आ जाएगा। तो कॉपर जो है वो सॉल्यूशन स्टेट में जब से ही आता है, हम यहाँ अमीन कॉम्प्लेक्स नीले रंग का बनाकर अलग कर सकते हैं। जबकि नाइट्रिक एसिड के साथ HgS 50% नाइट्रिक एसिड जो है वो प्रेसिपिटेटेड रहता है, रेसिडुअल रहता है, और उसको हम उस रेसिडुअल पार्ट को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीका ये है कि हम उसको पहले HCl के साथ मिलाएं। तो एक तरफ तो हमको कोलाइडल सल्फर अलग से रीजनरेट हो जाएगा और दूसरी तरफ मरकरी क्लोराइड HgCl2 बनेगा, और मरकरी क्लोराइड का आइडेंटिफिकेशन है SnCl2 की रिड्यूसिंग एक्शन। So when you see the reducing action of SnCl2, then we get metallic mercury precipitated in the black color. So this is how we can identify mercury at this point of time. अब हमने अभी तक यहाँ देखा था कि जब हमारे पास एक मिक्सचर था, हमने अमीन कॉम्प्लेक्स बनाया, अमीन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सब रेडिकल्स को किया, यहाँ कॉपर और मरकरी को सेपरेट किया। अब मेरे पास सॉल्यूशन में कोबाल्ट और निकल की स्पीशीज हैं, मैं इनके साथ देखना चाहता हूँ कि अब क्या हो सकता है। सो लेट्स हैव टू बिगिन विद द टू स्पीशीज कोबाल्ट एंड निकल। नाउ कोबाल्ट और निकल को अगर हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ मैं ऐड करूंगा अमोनियम थायोसाइनेट का क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल इन प्रेजेंस ऑफ एमाइल अल्कोहल, एंड इट इज रिपोर्टेडली ब्लू कॉम्प्लेक्स ऑफ थायोसाइनेट कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये एक नीले रंग का है। जनरली इसमें हम कार्बन डाइसल्फाइड भी मिला देते हैं ताकि ये जो ब्लू कॉम्प्लेक्स है वो उसमें डिसॉल्व हो जाए और क्लियर कट डिस्टिंक्शन हमको दिखाई दे नीले रंग का कॉम्प्लेक्स। तो एक तो टेस्ट ये हो गया जो इंडिपेंडेंटली हमने कोबाल्ट के लिए लगाया, और दूसरा तरीका हमारे पास में है निकल के लिए। हम सब जानते हैं कि DMG डायमेथाइलग्लाइएक्साइम निकल के लिए एक बेहतरीन रिएजेंट है जो एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसके अंदर सभी प्रकार के बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। सो यू कैन सी दैट यू गेट निकल DMG कॉम्प्लेक्स with a strawberry red color into it. So this is how we identify the radicals for the 6th group. So this is all about the different approach and grouping of radicals and their analysis. I am very thankful for observing and watching this video. Thanks again.